ماننا جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معاذ اللہ نبی پاک آکاش کی منڈیوں میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے، ایک ایک بندے کو جا کے تبلیغ کرتے، ایک ایک بندے کا دامن تھامتے، کبھی کسی کو کہتے کلمہ پڑھ لے، کبھی فرماتے وہ پیچھے جو تھا، اور فرماتے میں نے سوال کیا آگے کون ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ہے۔ میں نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب مٹی ڈالتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی اور گرد و غبار کے عالم میں پھول برساتے، تبلیغ مشکل ہو گئی۔ آؤ سنو میرے نبی پاک نے کس حال میں تبلیغ کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے نبی پاک کے گلے میں کافر چادر ڈال دیتے تھے اور چادر ڈال کے بل دیتے تھے، اور میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کو حرم کے اندر خدا کے گھر کے سین میں لٹا دیا کافروں نے، جوتے اتار لیے، اور رسول پاک علیہ السلام کے وجود اطہر پر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو مارتے تھے، حضور کے وجود سے خون نکلتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو مار مار کے تھک جاتے تھے تو حضور نظر اٹھا کے کہتے تھے ظالموں میں پھر بھی تمہیں کہتا رہوں گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستوں رسول پاک کے راہوں میں کانٹے بچھائے، 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی، 3 سال میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی، اور آج 2 بچیوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو لوگ مسجدوں میں آ کے اپیل کرتے ہیں میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، شیب ابی طالب کے وہ دن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا بڑھاپا، بچوں کا رونا، ساری رات بچے روتے رہتے، ساری رات میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہتے۔ میرے دوستوں کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں بتاؤں جو میرے نبی نے تیرے اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔ اور آپ ایک بات بتلاؤں، ابو جہل کتنا ظالم تھا، حضور کو پتھر مارتا تھا۔ پتہ ہے رسول پاک ابو جہل کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ 3000 مرتبہ میرے نبی نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی۔ 3000 بار، 3000 بار حضور نے کہا ابو جہل آ جا کلمہ پڑھ۔ 3000 بار میرے مصطفیٰ گئے ابو جہل کے گھر، اور 3000 بار اس نے کبھی گالی دی، کبھی پتھر مارا، کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا، لیکن حضور نے دین کی تبلیغ چھوڑی نہیں۔ تو گھر سویا رہتا ہے، میں گھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، 4 نمازیں پڑھ لی اور حق ادا ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے اور بات ختم ہو گئی۔ میدان میں نکل، مار کھا، تجھے پتا چلے محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بچوں کے نکاح میں تھی، 2 بچوں کا نکاح، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، میرے محبوب نے دین کی تبلیغ کا اعلان کیا تو ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں تو تبلیغ بند کر دو ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دلوا دوں گا۔ میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو لہب تیرا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت نہ دے، میری بیٹیوں کو تکلیف میں، بیٹیوں والوں اور بچوں والوں اور گھر رکھنے والوں اور اپنے گھر میں جا کے اولاد کا ماتھا چومنے والوں سنو، حضور نے پیغام بھیجا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت میں مبتلا نہ کر۔ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں ابو لہب نے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا دین چھوڑ دو یا طلاق تیرے گھر میں پہنچنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گردن جھکائی، فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ میرے دوستو 2 شہزادیاں بیٹیاں ابھی گھر سے گئی نہیں تھی، جب پیغام آیا نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میرے مصطفیٰ نے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور کی نظر آسمان پہ ٹکی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ، نظر آسمان کی طرف، اور حضور رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ دین کے معاملے میں اگر یہ تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یا اللہ میں اس کے لیے۔ دوستو کیا کیا دکھ، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا کٹھن مراحل میرے مصطفیٰ نے دیکھے، اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ کتنی اذیتوں سے ہو کے حضور گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ فرماتے ایک دن میں نے وہ دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ طائف کے بازار تھے اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کا پیغام دینے گئے تھے۔ فرمایا طائف کے لوگ پہلے تو نبی پاک پہ تانے برسانے لگے، کہنے لگے خدا کو تو ہی ملا تھا رسول بنانے کے لیے،
माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तेरे जैसे भिखारी कोई रसूल बनाना था, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। पहले हुजूर पे उन्होंने ताना तशनी की बरसात की, फिर औबाश लड़कों ने पत्थर उठाए। फरमाया वो मेरे नबी पाक को पत्थर मारते थे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम बैठ जाते थे, फिर वो हुजूर को पकड़ के खड़ा करते थे। हुजूर का अलम नशरा का सीना लहू लोहान था। फरमाया हुजूर को कहते थे चलो, हुजूर कदम उठाते थे तो नबी पाक के पैर पे पत्थर मारते थे। जख्म लगता था तो हुजूर पैर उठाते, दूसरा पैर रखते तो फिर पत्थर आता। इन पत्थरों की बरसात में मेरे नबी ने दीन का पैगाम फैलाया। इन पत्थरों की बरसात में हुजूर निकले। ताइफ की वादी से आज भी जाके सवाल पूछ, ताइफ का मैदान आज भी उस वाक़े को याद कर कर के रोता है, आज भी आसमान तड़पता है। हमने वो मंजर देख रखा है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक ने उस हाल में दीन की तबलीग की और ओहद का मैदान लगा तो मेरे नबी पाक के दांत भी टूटे, हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद से खून भी बहा, लेकिन हुजूर ने फिर भी रो के यही दुआ कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, खुदाया मेरी कौम को हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हुजूर ने कौन कौन सी कुर्बानियां दी। मक्का कितना प्यारा था हुजूर को, लेकिन मक्का भी हुजूर ने छोड़ दिया। शहर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वतन छोड़ना। हजरत सुल्तान ने बाऊ फरमाते हैं शाला मुसाफिर कोई न थी वे, कख जिना को पारे हो। मेरे रसूल पाक ने मक्का भी छोड़ा दीन के लिए और मदीने आए तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुख उठाए। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे रसूल पाक की सबसे बड़ी शहजादी, हामिला थी। हब्बार बिन असवद ने नेजा मारा, गिर गई, शहीद हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की मैयत पे खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां भी यही कहते हैं, या अल्लाह अगर यही तेरी रजा है तो मैं इसके लिए भी हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, कई कई दिनों का फाका, कई कई दिनों की भूख, कई कई दिन, और हुजूर फरमाते हैं सारे नबी सताए गए, मैं सबसे ज्यादा सताया गया। हुजूर फरमाते हैं सारे तड़पाए गए, मैं सबसे ज्यादा तड़पाया गया। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं नबी पाक का चेहरा मुबारक भूख से उतरा हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को शदीद भूख लगी हुई थी। हुजूर ने फरमाया सलमान 3 दिन हो गए खाया कुछ नहीं, चल जा अबू ज़र गिफारी के पास चलते। फरमाया अबू ज़र गिफारी के बाग में गए। जाते ही मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में जाते हुए जनाब उस्मान गनी को भी ले लिया, जनाब अबू बकर उमर अली को भी ले लिया। पहुंचे, जाके मैंने कहा कि अबू ज़र 3 दिन हो गए नबी पाक ने खाया कुछ नहीं, 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में फकर इख्तियारी है। नबी पाक ने खुद इसको इख्तियार फरमाया, 3 दिन से खाया कुछ नहीं। फरमाते हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे यार मुझे पता ही नहीं, किसी ने बतलाया ही नहीं, मैं तो सवेरे भी पेट भर के रोटी खाई और हुजूर इस आलम में। फरमाते घर गए, एक बकरी थी उसको ज़िबा किया, अपनी बीवी से कहने लगे जल्दी जल्दी रोटियां पका, जल्दी जल्दी सालन पका, तुझे पता मुस्तफा ने 3 दिनों से खाया कुछ नहीं। दोस्तों, अरब की गर्मी दुनिया में मशहूर है। सुबह का रोजा रखा है ना आपने, और अब जोहर के बाद उठना मुश्किल हो जाता है, असर के बाद बोलना मुश्किल महसूस होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, 3 दिन का रोजा, बगैर इफ्तारी के रोजा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं जल्दी कर, 3 दिन हो गए हुजूर ने खाया कुछ नहीं। आपकी बीवी ने जल्दी से रोटी पकानी शुरू कर दी, सालन तैयार। हजरत जनाब अबू ज़र फरमाते हैं दोबारा बाग में गया, अंगूर पके हुए थे, अंगूरों का खोशा तोड़ा, प्लेट में रखा हुजूर के सामने, हुजूर आप खाइए। उतनी देर में रोटियां पक के आ जाती हैं, सालन पक के तैयार हो जाता है। फरमाया हुजूर एक खजूर उठाते मुंह में रखते हैं, फिर बड़ी देर सोचते रहते, फिर एक अंगूर उठाते मुंह में रखते, बड़ी देर सोचते रहते, फिर एक अंगूर उठाते। बड़ी मुश्किल से 2-3 अंगूर हुजूर ने खाए और गहरी सोच में हुजूर रहे। फरमाते उतनी देर में रोटियां पक के आ गई, सालन मेरे नबी पाक के सामने आया। जब रोटियां पक के आई, सालन सामने आया, हजरत सलमान फरमाते हुजूर ने एक रोटी अपने हाथ पे रखी, 2-3 बोटियां उठा के रखी, चारों कोनों से रोटी लपेट के हजरत सलमान के हाथ में दे दी। फरमाया सलमान जा फातिमा के घर दे आ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी फातिमा 7 दिन हो गए सैयदा भूखी है। तो इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी 7 दिनों से घर में भूखी बैठी है। वो शिकायत नहीं करती, वो लबों से बोलती कुछ नहीं, वो जानती है मेरा बाप दीन की तबलीग में निकला है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जा और जाके हजरत फातिमा को ये दे आ। 7 दिन गुजर गए,
फातिमा के हलक से लुकमा नहीं गुजरा। मेरे दोस्तों, हुजूर गुजर रहे थे, अबू जाल ने पत्थर मारा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर से खून निकल आया। अब्दुल्ला बिन जदआन की लौंडी देख रही थी, दौड़ी दौड़ी हजरत अमीर हमजा के पास गई, जाके कहने लगी तुझे पता है आज अबू जहल ने तेरे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो समझता है उसका बाप मौजूद नहीं तो कोई जो मर्जी करे, मैं तुझे पता है क्या सलूक किया है? हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा भी मुसलमान नहीं हुए थे, कहने लगे क्या हुआ? कहा आज अबू जाल ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के सर पे पत्थर मारा, एक रवायत में डंडा मारा और सर से खून निकल आया। हजरत अमीर हमजा को बड़ा गुस्सा आया। अपना खून जोश मारा करता है, अपना खून कभी कभी जोश मारता है। हजरत अमीर हमजा मुसलमान तो नहीं थे, चचा तो थे ना। फौरन उठे, फौरन हाथ के अंदर एक बड़ी लाठी पकड़ी, अबू जाल को ढूंढा। अबू जाल बैठा था, कई लोगों के दरमियान जाते ही जोर से डंडा मारा और कहने लगे तू क्या समझता है मोहम्मद का बाप कोई नहीं तो तू जो मर्जी करेगा, मैं उसका बाप हूँ और मेरा भतीजा नहीं मेरा बेटा, मैं देखता हूँ तू कैसे नजर उठाता है। आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरी निगाहें निकाल दूंगा, मैं तेरे बाजू तोड़ दूंगा, खबरदार मेरे भतीजे के करीब आया। हजरत अमीर हमजा डांट रहे हैं तो अबू जाल को पता था अमीर हमजा शेर है, अमीर शेर है, अमीर हमजा के सामने बोला तो वाकई मारेगा। अबू जाल खामोशी के साथ बात सुनता रहा। जनाब अमीर हमजा डांट के गए रसूल पाक के पास। नबी पाक के सर पे पट्टी बंधी हुई है, हुजूर अपने घर में बैठे हैं। हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा को आते हुए देखा ना, जब कोई अपना नजर आए तो दुख याद आ जाते हैं। सर पे पट्टी थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम यतीम थे। हुजूर ने हजरत अमीर हमजा को आते देखा तो बाप की याद आई। हुजूर तेजी से उठे, हजरत अमीर हमजा ने गले से लगाया, बोले कुछ नहीं। मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की याद आई। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गले से लगाया, फरमाया बेटा रोना नहीं है, ऐ मेरे भतीजे गम नहीं करना, मेरा चाचा तेरा चाचा तेरे साथ है। किसी की जरूरत है तुझे तेरा बाल भी बांका कर जाए, किसी की जरूरत है आंख उठा के देख जाए। जब ये बात की ना, अपनायत का जुमला बोला, नबी पाक की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुजूर फिर तड़प के रोए, फिर हुजूर की आंखें भर आई। हजरत अमीर हमजा कहने लगे ना बस कर, अब खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने तेरा बदला ले लिया, राजी हो जा। रसूल पाक ने अपने चचा का हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के ना अपने सीने के साथ लगाया। हुजूर ने फरमाया चचा मैं राजी कोई नहीं, आंखों में आंसू, चाचा मैं राजी कोई नहीं। भतीजे तू कैसे राजी होता है? फरमाया चाचा मैं तब राजी होऊंगा जब तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मुझे तो दीन की खिदमत याद है, मुझे तो पैगाम दीन याद है, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो इतना याद है मैं खुदा का पैगाम्बर हूँ। मुझे हर मौके पे अपने दुख भूल जाते हैं, मुझे दीन का दर्द याद रहता है। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर हमजा आप उसको रिश्तेदारी की का जोश कहिए, नबी पाक की मोहब्बत का हैरान कहिए। कहने लगे अच्छा तू कलमा पढ़ने से राजी होता है, पढ़ा कलमा मैं मुसलमान हो जाता हूँ। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना, अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, अज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का, भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा, लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद बखुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि जहां जहां हम गलत हैं। जब एतराफ जुर्म होता है,
जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, वो अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया, जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया, वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी, हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहां तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया, उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला, हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है, उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने जो लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे, उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहां यहां मैं गलत हूं, इन्नल आबदा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात यह कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है कि थोड़ा इधर को थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाई। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी लिख गए, और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुजुर्गों की बातों को खोल कर हमारे सामने रखा। मजबूत अकायद की जिंदगी गुजारें। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी जरूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी जिंदगी मेरी जात से शुरू होती है, मेरी जात से। मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के मुताबिक। भाई आपकी तबीयत के मुताबिक चलें तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल यह था कि हुजूर ना दूसरों का बड़ा एहसास फरमाते थे। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़े तो हैरान हो जाएं कि सरकार फरमाते हैं मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूं तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं। जब मेरा किसी काम करने को दिल करे तो फिर मैं सारी दुनिया कुचलनी पड़े तो मैं कर जाता हूं। लेकिन हुजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी। या रसूल अल्लाह, नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। एहसास जब तबीयत हमारे यहां ना तेजी के साथ एहसास खत्म हुआ है, तेजी के साथ हमने इतनी नफी शुरू की। हमारे तो अहले तसव्वुफ में इल्ला माशाअल्लाह